لاہور ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن سے وابستہ زونل انتخابات میں سٹی کینٹ، راوی، ماڈل ٹاؤن اور شالیمار زون میں خواجہ ندیم گروپ کے تاریخی اور کلین سویپ کامیابی کے بعد مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلہ میں معروف کرکٹ آرگنائزر اور غالب جم خانہ کلب کے صدر میاں حمزہ فضل بھی خواجہ ندیم احمد سے ملاقات کے لیے پہنچے اور انہیں شاندار انتخابی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر میاں حمزہ فضل نے کہا کہ زونل انتخابات میں خواجہ ندیم گروپ کی کامیابی کرکٹ حلقوں کے اعتماد اور بہترین تنظیمی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کینٹ زون کے انتخابات میں انہوں نے اپنا ووٹ خواجہ ندیم احمد کے نامزد کردہ پینل کے حق میں استعمال کیا، کیونکہ وہ کرکٹ کے بہتر مستقبل اور مثبت قیادت پر یقین رکھتے ہیں۔ میاں حمزہ فضل نے مزید اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ ریجنل انتخابات میں بھی خواجہ ندیم احمد کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کے امکانات روشن اور مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے کینٹ زون میں کرکٹ کی ترقی اور انتظامی معاملات میں اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر پیش کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے کرکٹ کے فروغ اور نوجوان کھلاڑیوں کی روشن مستقبل کے لیے خواجہ ندیم احمد کے ساتھ مکمل تعاون اور اشتراک عمل جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا ہے۔ اس موقع پر خواجہ ندیم احمد نے میاں حمزہ فضل کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات میں ان کی حمایت، اعتماد اور ووٹ ان کے لیے باعث حوصلہ افزائی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں بھی کرکٹ کی بہتری اور مثبت سرگرمیوں کے فروغ کے لیے باہمی تعاون کے ساتھ آگے بڑھنے پر اتفاق کیا۔ سیالکوٹ کے نواحی علاقہ کلوال میں امام بارگاہ قصر زینبیہ میں 7 محرم الحرام کے سلسلہ میں مجلس اعزاء اور جلوس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں عزاداران امام حسین علیہ السلام نے شرکت کی اور جھولا شہزادہ لیسکر علیہ السلام بھی برآمد کیا گیا۔ مزید تفصیل بتائیں گے ہمارے ضلع بیورو چیف سیالکوٹ شکیل سیٹھی۔ آج ہی مجلس اعزاء سے خطاب کرتے ہوئے علماء و ذاکرین کرام نے کہا کہ واقعہ کربلا انسانیت، محبت، بھائی چارے، صبر اور حق و سچ پر ڈٹے رہنے کا درس دیتا ہے۔ مجلس سے ملک ظہیر عباس، قاسم رضا جعفری، سید صفدر حسین شاہ، قمر سجاد قمر، ناصر عباس سیال، ساجد حسین، علامہ سید صحابت علی شاہ کاظمی، ذاکر حسین اور دیگر علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ 7 محرم الحرام کا جلوس اور جھولا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام امام بارگاہ قصر زینبیہ کلوال سے برآمد ہوا۔ جلوس اپنے روایتی اور قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا رہا، جبکہ عزاداران لوہا خوانی اور سینہ زنی کے ذریعے شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے رہے۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ سیالکوٹ اور پنجاب پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ جلوس کے داخلی راستوں پر واک تھرو گیٹس نصب کیے گئے تھے، جبکہ ایس ایچ او ایئرپورٹ اور ڈی ایس پی سمبریال سجاد باجوہ نے سیکورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ جلوس اپنے مقررہ روایتی راستوں سے ہوتا ہوا سید اختر علی شاہ کی رہائش گاہ پر اختتام پذیر ہوا، جہاں عزاداران نے شہداء کربلا کی عظیم قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے امن، اتحاد اور بھائی چارے کے پیغام کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر معروف علمی اور دینی شخصیت مرزا تجمل بیگ نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام، اتحاد و یگانگت کے فروغ اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ کانفرنس کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، امن اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر اسد اشتیاق کے ساتھ شکیل سیٹھی، بیورو چیف آن نیوز سیالکوٹ۔ لاہور سے رپورٹ کریں بیورو چیف لاہور امجد ہاشمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاف ستھرا پنجاب کے وژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے لیسکو چیف انجینئر محمد رمضان بٹ کی ہدایت کی روشنی میں سمن آباد ڈویژن کے اسلام پورہ سب ڈویژن کے علاقہ میں لیسکو بیوٹیشین سسٹم اور محرم الحرام میں عزاداروں کی سہولت کے پیش نظر پانڈو اسٹریٹ سے پرانی نارکلی خیمہ سادات تک جتنے بھی ایسے پوائنٹ تھے جہاں بے ہنگم لٹکتی تاروں کو ہینگنگ وار کیا گیا اور گچھوں کو ختم کر کے گولہ بار ڈال دی گئی، جبکہ خستہ حال کھمبوں کو بھی تبدیل کر کے نئے کھمبے لگا دیے گئے۔ اسی طرح 9ویں 10ویں محرم میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں سمن آباد ڈویژن کی جانب سے امام بارگاہ پانڈو اسٹریٹ میں جنریٹر بھی فراہم کیا گیا، جہاں سے 9ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس نکلتا ہے۔ اس سارے کام میں اپنی نگرانی میں کرواتے ہوئے ایکس ای این سمن آباد علی حسن کا کہنا تھا کہ صارفین کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی لیسکو کی اولین ترجیح ہے۔ محرم الحرام میں سخت گرمی میں عزاداروں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے میں اور میرا سٹاف دن رات آن ڈیوٹی ہیں۔ اس موقع پر ایس ٹی او اسلام پورہ سب ڈویژن صابر حسین، ایکس ای این کے پی اے محمد ذیشان، لائن سپرنٹینڈنٹ محمد شبیر اور دیگر سٹاف بھی موجود تھا۔
ठल में 8 मुहर्रम अल हराम का रवायती माकनी जुलूस अल हुसैनी इमाम बारगाह से सईद महबूब शाह की निगरानी में बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्रर मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ अली अस्करिया इमाम बारगाह पहुंचेगा, जहां मजलिस अज़ा मुनक़िद की जाएगी। जुलूस में अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों की एहलकार जुलूस के साथ तैनात है। इस मौके पर म्युनिसिपल कमेटी का अमला सफाई और दीगर इंतजाम के लिए मौजूद रहा, जबकि तालका अस्पताल का तिबी अमला हंगामी तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए जुलूस के साथ मौजूद रहा। वापडा का अमला भी बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देता रहा। इंतजामिया के मुताबिक अज़ादारों की सहूलत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। नूरपुर थल 8 मुहर्रम अल हराम जुलूस कोशाब की तहसील नूरपुर थल में 8 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस रंगपुर बगोर से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ कश्मीर चौक में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। मजीद बता रहे हैं नूरपुर थल से सुबहान चौधरी की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह नूरपुर थल में भी 8 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के मौका पर ज़िला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। DPO खुशाब की खुसूसी हिदायत पर पुलिस, एलीट फोर्स, लेडी पुलिस और रेंजर्स के जवान ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। जुलूस के तमाम दाखिली खारजी रास्तों को खारदार तारों और कनातों के जरिए सील किया गया, जबकि अज़ादारों को मुकम्मल चेकिंग के बाद जुलूस में शिरकत की इजाज़त दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर हारून अहमद ने STPO के हमरा जुलूस के आगाज़ की मुकाम कश्मीर चौक और मुख्तलिफ सबील पॉइंट का दौरा किया, अज़ादारों से मुलाकात की और इंतजामी सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। डेरा गाजी खान से खबर शामिल करते हैं। जिला भर में 8 मुहर्रम अल हराम के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। जिला भर में 8 मुहर्रम अल हराम के मौका पर 95 मजालिस और 86 जुलूस के प्रोग्राम्स मुनक्किद हो रहे हैं। मजालिस में A कैटेगरी के 24, B कैटेगरी के 43 और C कैटेगरी के 28 प्रोग्राम शामिल हैं। जुलूस में A कैटेगरी के 8, B कैटेगरी के 34 और C कैटेगरी के 44 प्रोग्राम शामिल हैं। इस मौके पर सैकड़ों पुलिस एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तमाम प्रोग्राम्स में जिला पुलिस, एलीट पुलिस फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, लेडीज़ पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और वॉलंटियर्स ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। मजालिस के वीडियो रिकॉर्डिंग और CCTV कैमरा जात के जरिए भी मॉनिटरिंग की जाएगी। जिला भर में तमाम तर वसाइल को बुरे का लाते हुए सिक्योरिटी के इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO ननकाना साहिब अरसलान जाहिद की हिदायत पर थाना फैजाबाद पुलिस ने समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां करते हुए दो डकैत गैंग के 5 खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत के नकदी, 5 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और असला भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान से रॉबरी और चोरी की मजमूई तौर पर 29 वारदातों का सुराग लगाया गया, जबकि दौरान तफ्तीश मजीद अहम इंकशाफात की तवक्को है। गिरफ्तार मुलजमान में एक डकैत गैंग का सरगना शाहरोज उर्फ शाहरोजी गुलाम हुसैन और इनका साथी मुज़िम हैदर शामिल हैं, जबकि दूसरे गैंग के मुलजमान नदीम उर्फ सोहनी और शहबाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये मुलजमान थाना फैजाबाद और गिरदनवाह के इलाकों में शहरियों के लिए खौफ और हरास की अलामत बन चुके थे। DPO अरसलान जाहिद की हिदायत के मुताबिक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए SHO थाना फैजाबाद फिरोज भट्टी के सरबराही में खसूसी पुलिस टीम तश्कील दी गई, जिसने पेशेवराना महारत को बुरे का लाते हुए कामयाब कार्रवाई अंजाम दी। DPO का कहना है कि शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना जिले पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और अवाम को अमन और सुकून को खतरे में डालने वाले नासिर किसी रात की मुस्तिक नहीं। DPO ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विज़न महफूज पंजाब के तहत जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं और जिला में अमन अमान के क़याम के लिए तमाम वसाइल बुरे का लाए जा रहे हैं। शामिल कहते हैं ननकाना से ON न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अवैस सादिक की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहिब DPO और अरसलान जाहिद की हिदायत पर 9 मुहर्रम अल हराम का सिक्योरिटी प्लान जारी। 9 मुहर्रम को जिला भर में 25 जुलूस और 21 मजालिस होंगी। तमाम मजालिस और जुलूसों के असासियत के हिसाब से कैटेगरी वाइज ड्यूटी लगाई गई है। 9 मुहर्रम को कैटेगरी A के 5, कैटेगरी B के 7 और कैटेगरी C के 13 जुलूस मुनक्किद होंगे। ननकाना साहिब जिला भर में A कैटेगरी के 1, B कैटेगरी के 2 जबकि C कैटेगरी के 18 मजालिस मुनक्किद होंगी। 950 से ज़ायद पुलिस अफसरान, मुलाजमान और 749 सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। DPO दफ्तर में इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जो 24 घंटे मुतहरिक रहेगा। सिक्योरिटी ड्यूटी दीगर इंतजाम को डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के कंट्रोल रूम में भी मॉनिटर किया जाएगा। तमाम मजालिस और जुलूसों के सेफ सिटी से निगरानी का अमल यकीनी बनाया जाएगा। मजालिस और जुलूसों की निगरानी के लिए 588 CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। तमाम पुलिस अफसरान, मुलाजमान, मुतल्लिका इदारों, मुतज़म्मीन अज़ादारान से ताउन करें। DPO अरसलान जाहिद मजालिस और जुलूसों को पुरअमन बनाने के लिए तमाम सिक्योरिटी इक़दामात बुरे कार लाएंगे। DPO अरसलान जाहिद। ओकाड़ा फ्लैग मार्च मुहर्रम अल हराम के मौका पर जिला भर में फ्लैग मार्च का इनेकाद। रेस्क्यू 122 ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स और रेंजर्स की शिरकत। STPOs और SHOs ने हिस्सा लिया। MA जनार रोड फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना है। अशूरा मुहर्रम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाएंगे। अमन अमान के क़याम के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट है।
खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। माई नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल 7वें मुहर्रम हराम का जुलूस इमाम बारगाह साहिब ज़मान ईरानियान से बरामद। साहिवाल 7वें मुहर्रम जुलजना का बरामद होने वाला जुलूस मुकर्रर रास्तों से गुजरते हुए वापस इमाम बारगाह ईरानियान इख्तिताम पजीर होगा। साहिवाल अज़ादार सीना गोभी और नोहा ख़ानी करते हुए मुकर्रर रास्तों पर गामजन। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। ये अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ शाम 6 बजे वापसी इमाम बारगाह साहिब ज़मान में जंजीर यानी होगी और इख्तिताम पजीर होगा। इख्तिताम पर जंजीर जनी से जख्मी होने वाले अज़ादारों को फौरी तिब्बी इमदाद मिलने से रेस्क्यू डबल नाराज़ तमाम जख्मी अज़ादार को अपनी मददाब के मुताबिक DHQ हॉस्पिटल जख्मी होने वाले अज़ादारों को फौरी इमदाद ना मिलने से रेस्क्यू 122 से नाराज़ तमाम जख्मी अज़ादारों को अपनी मददाब के तहत DHQ हॉस्पिटल पहुंचाया और इनकी मरहम पट्टी की गई। 8वें मुहर्रम हराम का मरकज़ी जुलूस बाबा अहमद खान ढक्कू इमाम बारगाह ज़ैनबिया बंगला चौक से ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और झूला हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम बरामद हुआ। मामू कांचन में 8वें मुहर्रम हराम का मरकज़ी जुलूस बाबा अहमद खान ढक्कू इमाम बारगाह ज़ैनबिया से झूला अली असगर अलैहिस्सलाम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अलम पाक गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बरामद हुआ, जिसकी क़यादत अंजुमन अस्ना अशरा के सदर सैयद साजिद अब्बास काज़मी, नायब सदर जाहिद इकबाल ढक्कू की क़यादत में जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ बंगला चौक पहुंचा। यहाँ पर नमाज ज़हरैन अदा की। नमाज के दौरान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नोहा ख़ानी जंजीर ज़नी सीना कोबी की। जुलूस के दाखिल खारजी रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए। तमाम सिक्योरिटी इदारों के जवान जुलूस के साथ अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देते रहे। चुंगी नंबर 5 पर पहुँच कर अज़ादारों ने मातम जंजीर ज़नी के जुलूस के शुरका से इलामा ने खिताब शिबिया जुलजना बरामद हुआ। आखिर में मुल्क पाकिस्तान आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। जुलूस कसरे अबू तालिब अलैहिस्सलाम में इख्तिताम पजीर हुआ। खान बहावल इसहाक खान उम्मीदवार MNA पीपल्स पार्टी NA 97 मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मैं अपनी बात का आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगा। मुझसे मेरे हुसैन का हौसला न पूछिए, मुझसे मेरे हुसैन का हौसला न पूछिए, जितने भी दर्द आए रोए नहीं हुसैन। जो सिक्योरिटी के हवाले से आपने बात की, देखें तमाम इदारे यहाँ पे बड़े मुतहरक नज़र आ रहे हैं। शदीद गर्मी में भी वापडा भी है, उसमें आपके तमाम सिक्योरिटी के इदारे भी हैं, पुलिस भी है और स्पेशल ब्रांच भी है यहाँ पे, और दीगर भी जितने भी सरकारी महकमों के जो अफराद हैं वो बड़े अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और बड़ा पुरअमन ये जो जुलूस है ये मुहर्रमुल हराम का हर साल की तरह जो है अपने जो मंजिल मकसूद है उसकी तरफ रवां दवां है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह मोहब्बत, रवादारी और इसमें हमआहंगी का जो दर्स है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का झंडा बुलंद करके दिया था, वो आज भी वो झंडा बुलंद है। और इस हुसैनी झंडे के नीचे हम तमाम अफराद जो हैं वो इकट्ठे खड़े हैं और ये इस बात की निशानदेही करती है कि हम आज भी हुसैनी हैं और हम सब इकट्ठे हैं। भर की तरह शहर मरीद के में भी 8 मुहर्रम हराम का मरकज़ी जुलूस शबिया जुलजना इमाम बारगाह हुसैनिया रेलवे स्टेशन से बरामद हुआ, जो अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ गला मंडी पहुंचा, जहां ज़दरान इमाम मज़लूम करबला ने नमाज ज़हरैन अदा की। जुलूस करबला के शहीदों की याद में मातम और नोहा ख़वानी करते हुए अपनी मंजिल की तरफ गामज़न। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा आगा मोहसिन रज़ा से। जी आगा मोहसिन रज़ा, आगाह कीजिएगा। शहर मरीद के में 8 मुहर्रम हराम का दूसरे मामला का हुसैन का रेलवे स्टेशन से बरामद होता है। आप अपने मखसूस रास्तों से गजावटी पहुँचा, जहाँ इमाम मज़लूम करबला के अज़ादारों ने नमाज़ ज़हरैन अदा की। जुलूस वहाँ से अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ दिन चौक में पहुँचा, जहाँ आलम दीन ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। वहाँ से जुलूस पहुँचेगा, जहाँ इमाम हुसैन के अज़ादार नमाज़ अदा करेंगे और वहाँ से जुलूस से करता हुआ करबला इमाम जो इमाम बारगाह वहाँ इख्तिताम पजीर होगा। था अगर मैं सिक्योरिटी के हवाले से बात करूँ तो DPO शेखपुरा की निगरानी में DSP गुलाम मुर्तज़ा डोगर की क़यादत में SHO CD की सुपरविजन में जो रंजन अजीज़ भट्टी हैं उनकी सुपरविजन में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जगह जगह पर पुलिस एहलकार तैनात हैं। 300 के करीब पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूल किए जाते हैं, जबकि सुथरा पंजाब म्यूनसिपल कमेटी के एहलकार और SQ के एहलकार और TMA के एहलकार और तहसील हेडक्वार्टर के एहलकार की अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जगह जगह सबीलों का इंतज़ाम किया गया है, जहाँ करबला के प्यासों की जात में सबीलें लगाई गई हैं। खुसूसी तौर पर शदाद
آج گلی گلی کوچے کوچے ذکر حسین بلند ہے, ذکر مصطفیٰ بلند ہے, جگہ جگہ پر اذانیں ہو رہی ہیں, جگہ جگہ پر ذکر مصطفیٰ ہو رہے ہیں. یہ صرف اور صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کی. امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو آج نہ مسجدوں میں اذانیں ہوتی اور نہ ہی کلمہ مصطفیٰ پڑھا جاتا. صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کا جو کلمہ پڑھا جا رہا ہے, اذانیں ہو رہی ہیں, امام حسین علیہ السلام کی دولت ہو رہی ہیں. یزید کا مشن تھا دین محمد کو مٹانا. یزید بن معاویہ حضرت امام حسین کو قتل کر کے بھی, شہید کر کے بھی دین محمد کو نہ مٹا سکا, جبکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے 72 جانشینوں کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر 1,26,000 انبیاء کی محنت کو بچا لیا, اپنے نانا کی محنت کو بچا لیا, کلمہ محمد کو بچا لیا, دین محمد کو بچا لیا. کبھی تو اقبال کی قلم بے ساختہ اٹھی, اقبال کہنے پر مجبور ہو گیا, انسان کو بیدار تو ہونے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. سلام. کیا کراچی خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے رپورٹر عبد الوحید ابڑو کی رپورٹ کے مطابق کراچی ضلع ملیر مفت میں کام نہ کرنے پر دکاندار کو سنگین نتائج کی دھمکیاں جانی اور مالی نقصانات کی دی گئی. قانون نافذ کرنے والے ادارے اس ویڈیو کا نوٹس لیں اور اس ویڈیو میں نظر آنے والا شخص جس نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, یہ شخص خود کو احساس اداروں کا اہلکار ظاہر کر رہا ہے. اس ویڈیو میں یہ شخص دھمکیاں دے رہا ہے, ایک دکاندار کو ہم لوگ آپ کو ایسی جگہ پر اٹھا کر لے جائیں گے جہاں آپ کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چل سکے گا, اور ساتھ ہی دکاندار کو دھمکیاں تڑیاں دے کر اس سے مفت کام کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس سے پیسے نہ لے اور ان کو مفت میں کام کر دے, اور یہ اس کو دھمکیاں دے کر ہراساں کر رہے ہیں. دکاندار کا یہ واقعہ تھانہ شاہ لطیف ٹاؤن 17A کا ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے جلد سے جلد اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کریں اور اس کو گرفتار کر کے قانون کے دائرے میں لایا جائے, اور احساس اداروں نام بدنام کرنے والے عناصروں کے خلاف DIG سندھ ایڈیشنل IG DG رینجرز کمانڈر کراچی SSP ملیر SP ملیر DSP تھانہ شاہ لطیف ٹاؤن SHO شاہ لطیف ممتاز مروت اس بات کا نوٹس لیں اور دکاندار دھمکیاں دینے والے شخص کی جلد سے جلد سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جائے اور دکاندار کے ساتھ انصاف کیا جائے, اور دکاندار کو کسی بھی قسم کی جانی مالی نقصان اگر ہوتا ہے تو اس نقصان کی ذمہ دار یہ شخص ہوں گے جو ویڈیو کے اندر سرعام دھمکیاں دے رہے ہیں اور دکاندار سے بدمعاشی کر رہے ہیں اور اس احساس اداروں کا نام لے کر احساس اداروں کے ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور سرعام احساس اداروں کا نام لے کر دکاندار کو دھمکیاں دے رہے ہیں. بھاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان کوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے عاشورہ محرم الحرام سیکیورٹی اور انتظامی انتظامات کی نگرانی کے لیے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ کیا. اس موقع پر ڈسٹرکٹ کے پولیس آفیسر رانا عبد الوہاب بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. دونوں افسران نے ضلع بھر میں نکالے جانے والے جلوسوں اور منعقد ہونے والے مجالس کی مانیٹرنگ کے لیے کیے گئے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا. دورے کے دوران سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر عظیم ذیشان اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر ڈاکٹر عائشہ خان نے ڈپٹی کمشنر کو جدید مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے جلوسوں اور مجالس کے ریئل ٹائم نگرانی کے حوالے سے بریفنگ دی. بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ضلع بھر میں ہونے والی تمام اہم سرگرمیوں میں مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بروقت نمٹا جا سکے. ڈپٹی کمشنر بہاولپور کو بتایا گیا ہے کہ عاشورہ محرم کے دوران ضلع بہاولپور میں مجموعی طور پر 250 جلوس اور 575 مجالس منعقد ہوں گی. جلوسوں کی درجہ بندی کے مطابق 7 جلوس A کیٹیگری, 5 جلوس B کیٹیگری جبکہ 238 جلوس C کیٹیگری میں شامل ہیں. اس طرح مجلس میں ایک مجلس کے A کیٹیگری, 3 مجالس B کیٹیگری اور 571 مجالس C کیٹیگری کی ہیں. بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان کوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عبد الوہاب کے ہمراہ 8ویں محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی اور مانیٹرنگ انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے سیف سٹی اتھارٹی کنٹرول روم کا دورہ کیا. اس موقع پر سیف سٹی انچارج کاشف عبداللہ نے انہیں جدید سرویلنس سسٹم, کیمروں کے نیٹ ورک, محرم الحرام کی سیکیورٹی پلان اور مختلف ہیلپ لائنز پر موصول ہونے والی کالز کے اندراج اور ان پر رد عمل کے طریقہ کار کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی. ڈپٹی کمشنر نے کنٹرول روم میں نصب جدید مانیٹرنگ سسٹم کا معائنہ کیا اور CCTV کیمروں کے ذریعے جلوسوں اور مجالس کے نگرانی کے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے کال رسپانس میکانزم, ہنگامی صورتحال میں رابطہ کاری کے نظام کو, مختلف اداروں کے درمیان معلومات کے تبادلے کے طریقہ کار کا بھی تفصیلی مشاہدہ کیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کا قیام, شہریوں کی جان مال کا تحفظ اور عزاداروں کو پرامن ماحول کی فراہمی ضلع انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی اور موسم مانیٹرنگ کے ذریعے جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے.
बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया और रीजनल पुलिस ऑफिसर गाजी सलाहुद्दीन ने चौकला में 7वीं मुहर्रम अल हराम के मरकजी जुलूस का दौरा किया और सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना अब्दुल वहाब और दीगर मुतल्लिका इंतजामी पुलिस अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। कमिश्नर बहावलपुर ने जुलूस के रूट्स पर सफाई सुथराई, लाइटिंग, सिक्योरिटी और अज़ादारों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए मजमूई इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर कमिश्नर इरफान अली काठिया ने कहा कि मुहर्रम अल हराम के दौरान अज़ादारों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हुकूमत पंजाब की तरजीहात में शामिल है और इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका महकमे भरपूर अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने हिदायत किया कि जुलूस और मजालिस के दौरान अमन अमान के क़याम और शहरियों की सहूलत के लिए तमाम इंतजामात मौसर अंदाज में बरकरार रखे जाएँ। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा ने ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि मुहर्रम अल हराम के हवाले से तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए लिए गए हैं और ज़िला इंतजामिया मुसलसल फील्ड में मौजूद रहकर सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलत की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। रीजनल पुलिस ऑफिसर गाजी सलाहुद्दीन ने जुलूस के साथ मकामात, ड्यूटी पॉइंट्स और दीगर सिक्योरिटी इंतजामात की तफसीली मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत किया कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। टीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी एक मरतबा फिर बायो मेडिकल वेस्ट के गवें कारोबार शुरू। ज़ेर नज़र तस्वीर में दिखने वाले दो अफराद, एक अफगान सिटीज़न उस्मान उर्फ इज़्ज़त खान और दूसरा राजा रियाज, जो कि एक निजी अखबार का नुमाइंदा अपने आप को जाहिर करता है। दिन भर अफगानी उस्मान के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर मुख्तलिफ कबाड़ खानों को अस्करी हॉस्पिटल से चोरी किया हुआ इन्फेक्टेड माल बेच रहे होते हैं। इशफाक पोस्ट क्रिप्ट इंसान जो मेडिसन चोरी के केस में जेल भी काट चुका है। इन तमाम चोरों को जल्द मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा और हॉस्पिटल से इन्फेक्टेड माल चोरी करने की मुकम्मल स्टोरी ऑन न्यूज़ मलिक नदीम के साथ जल्द मुलाहजा फरमाएं। सियालकोट में सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट पंजाब समन राय का जीसी विमेन यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के नुमाइश का मुआयना। नुमाइश में 18 तलबात के 200 से ज़ायद तख्लीकी फ़न पारे, जदीद डिज़ाइन और आर्ट्स के मुनफरिद नमूने पेश किए गए। मज़ीद तफसील जानते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी से। आज सियालकोट में सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट पंजाब सुमन राय ने गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट का दौरा किया, जहां उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में फाइनल ईयर की तालिबात की थीसिस नुमाइश देखी। इस मौका पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर भी मौजूद थी। नुमाइश में 18 तालिबात के 200 से ज़ायद तख्लीकी फन पारे, जदीद डिजाइन और आर्ट के मुनफरद नमूने पेश किए गए। टेक्सटाइल डिजाइन में तालिबात की जानिब से होम डिजाइनिंग के जदीद और मुनफरद आइडियाज नुमाइश में खसूसी तवज्जो का मरकज बने रहे। सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट पंजाब सुमन राय ने नुमाइश का मुआयना करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में ख़वातीन की तरक्की, खुद मुख्तारी और मुआशी खुद कफालत के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। ख़वातीन को तालीम, हुनर और रोज़गार के मौक़े फराहम करना हुकूमत पंजाब की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि फ़ाइन आर्ट्स की तालिबात की 4 साल मेहनत इनके तख्लीकी काम में वाज़ेह नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि नुमाइश का मयार काबिल तारीफ है, जबकि तालिबात का काम हैरान कुन है। फैकल्टी की मेहनत और रहनुमाई भी नुमायां नजर आ रही है। सुमन राय ने का कहना था कि आर्ट और डिजाइन के शोबे में आलमी सतह पर वसी मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि तालिबात को चाहिए कि सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के जदीद ज़राए को इस्तेमाल करते हुए अपने फन को आलमी सतह पर मुतारफ करवाएं। वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी सियालकोट प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर ने कहा कि यूनिवर्सिटी तालिबात को अपनी सलाहियतों के इजहार और सीखने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि फाइन आर्ट्स की तालिबात की तख्लीकी सलाहियतों को निखारने के लिए भरपूर मौक़े फराहम किए जा रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी की फैकल्टी काबिल और तजर्बाकार असातिज़ा पर मुश्तमिल है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मिर्जा असद इश्तियाक बेग के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सियालकोट। और से रिपोर्ट करें क्राइम रिपोर्टर काशिफ सिंधु। आशूरा मुहर्रम अल हराम की पुरअमन-ए-नकात और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से IG पंजाब राव अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब मोहम्मद अली नेकोकारा ने सुबह भर में मजालिस, अज़ादारी, जुलूसों और सिक्योरिटी प्लान बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। तमाम RPOs, CPOs और DPOs ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए IG पंजाब अब्दुल करीम ने हिदायत की है कि आशूरा मुहर्रम अल हराम के दौरान लाहौर समेत पूरे सूबे
सूबे में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी जाए और दफ़ा 144 समेत तमाम SOPs पर सख्ती से अमन दरामद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि अमन दुश्मन नासिर फ़िरका वारियत, मजहबी मुनाफरत और अमन ओमान की सूरत हाल ख़राब करने की किसी भी कोशिश को हर सूरत नाकाम बनाया जाए। IG पंजाब ने सीनियर पुलिस अफसरान को हिदायत की है कि वो आज़ादारी जुलूसों के रूट, इमाम बारगाहों और एहसास मकामात का खुद दौरा करें और सिक्योरिटी, ट्रैफिक और दीगर इंतजाम का जायज़ा लें। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से जुलूसों के रास्तों से तजावुज़ात के खात्मे, सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स की फ़ालियत और दीगर शहरी सहूलियात की बर वक्त फराहमी यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। IG पंजाब ने तमाम अज़ला में अमन कमेटियों, मुख्तलिफ मौक़ात पर फ़िक्र के उलमा कराम और मजालिस जुलूसों के मुंतज़मीन के साथ करीबी राब्ता बरकरार रखने की हिदायत करते हुए कहा कि बैनुल मसालिक हम आहंगी के फ़रोग़ और मुमकिन मसाइल की पेशगी हल के लिए मौसर कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने एहसास मकामात पर इजाफी नफरी CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गियर्स और मेटल डिटेक्टर्स के मौसर इस्तेमाल का भी हिदायत की। सर गंगाराम हस्पताल की कैंटीन पाकिस्तान का कर्ज उतारने लगी। खाने पीने की अशिया पर 3 गुना भत्ताखोरी करने वाले कैंटीन मालिक ने ऑन न्यूज़ की टीम को मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। MS और DMS के नोटिस में होने के बावजूद कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। अपनी फैमिली के साथ आई ख़वातीन अपने बच्चों के लिए 20 वाला जूस 60 रुपये में लेने पर मजबूर। तफसीलात बता रहे हैं सीनियर रिपोर्टर बाबर भट्टी। जी सर, गंगाराम अस्पताल की कैंटीन पाकिस्तान का कर्ज उतारने लगी। खाने पीने की इशा पर 3 गुना भत्ताखोरी कैंटीन मालिक ने ऑन न्यूज़ की टीम को मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। MS और DMS के नोटिस में होने के बावजूद कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। अपनी फैमिली के साथ आई ख़वातीन अपने बच्चों के लिए 20 वाला जूस 60 रुपये में लेने पर मजबूर। जी नाज़रीन, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये फ़िल्टर जूस है। ये 20 रुपीज़ से ऊपर प्राइस लिखी हुई है। ये एक माफिया है जो 20 रुपीज़ वाला जो जूस है वो 60 रुपीज़ में सेल कर रहा है। आइए नाज़रीन, इनका मौक़िफ़ लेते हैं। भाईजान, ये कितने का आप जूस दे? 60 रुपये का भाईजान। 60 रुपये का। अच्छा, कीमत ऊपर 20 रुपये लिखी हुई है। एक कैंटीन का क्यों दे रहे हैं? एक कैंटीन का टेका होता है, उसमें 10-20 रुपये। ठेका आपने अवाम में से निकालना है। तो आवाम के लिए हम बैठे हैं ना। 40 रुपये अवाम में से एक जूस में से निकालने हैं। 40 रुपये। 60 रुपये का जूस भैया, 60 रुपये का जूस ऊपर जो प्राइस 20 रुपये लिखी हुई है, मेंशन की हुई है। जी जी, इधर कैंटीन पे फ़र्क होता है। कैंटीन पे फ़र्क होता है। 40 रुपये का डिफरेंस आ गया। 40 रुपये का डिफरेंस। हाँ जी, कैंटीन का ठेका आपने अवाम में से निकाला? जी, अवाम में से। और किधर से निकालना है? कोई पूछने वाला नहीं है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी है। नहीं, आपका राज है यहाँ पे। 60 रुपये का भाई जूस है ये। अच्छा, यानी कि आपका राज है यहाँ, आप अपनी मनमर्जी के रेट लगाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के टाइम। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।